Hello everyone, very good morning and welcome to our maths class. This is chapter 14 of our maths book and the chapter is about factorization, and in the previous video we have completed exercise 14.1 and 14.2, and in today's video we will cover exercise 14.3. Okay, and this is the last exercise of this chapter. We are not going to do exercise 14.4 just because of less importance. Okay, so let's see exercise 14.3. okay, so here it is, exercise 14.3. the first question, carry out the following divisions. इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, डिविजन्स करना है. ओके, तो let's see, these are the very easy questions. Okay, so let's solve the first question. The first question is 28x4 divided by 56x. Okay, so let's see how we'll do it. First one, 28x raised to power 4 divided by 56, right? So we can write it as 28 x raised to power 4 and 56 x. Okay, so first of all you can calculate, you can cancel out 28 and 56 directly if you know that 28 into 2 is equal to 56, right? So 28 1 ja 28 and 28 2 ja 56. Okay, so in this way you can write 1 by 2 directly by cancelling these two numbers. Okay, otherwise you can just cancel these two terms with 2 and then again 2 and then again 2, but that will be a long procedure. Okay, so in any way you can do it. Okay, suppose you don't know the table of 28, so you can cancel it by 4 4 7 ja 28 and 4 14 ja. Okay, now 7 1 ja and 7 2 ja, so again we are getting 1 by 2. Okay, so anyway we will get 1 by 2, so I am writing here 1 by 2. Okay, now here we have 1x and here we have 4x, so 1x will be cancelled and here we will have x raised to power 3. So ultimately we are getting 1 by 2 and x raised to power 3. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x raised to power 3 by 2. okay, either this way or this way, both are correct. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. okay, let's take another question. The next one is 36y cube minus divided by 9y square. okay, so 36y cube divided by 9y square. So you all know the table of 9. 9 1 ja 9 and 9 4 ja 36. okay, एंड अगेन यहाँ पर y स्क्वायर है और y की पावर यहाँ पर 3 है, तो 2y कैंसिल आउट है, तो केवल यहाँ पर आपका सिंगल y बचा. तो हमें ऊपर यहाँ क्या मिल रहा है, ये माइनस है, तो माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और एक y हमारे पास बचा हुआ है. ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं मिला, सो -4y विल बी आवर आंसर, राइट? In the same way you can solve all the rest questions, and just take one more question. So we are going to solve number 5, this one. okay, and the fifth question is 12 a raised to power 8 b raised to power 8 divided by -6 a raised to power 6 b raised to power 4. okay, तो सबसे पहले 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12. ओके, तो यहाँ हमें ऊपर मिल रहा है 2, राइट? फिर यहाँ a हमारे पास 6 है और यहाँ a कितना है, 8 है, राइट? तो यहाँ a की पावर कितनी हमें मिल जाएगी, 2.
यहाँ b की पावर 4 है और यहाँ कितने हैं 8 है, तो अगेन 4 b कैंसिल होंगे तो 4 यहाँ पर बचेंगे। सो हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिल रहा है यहाँ पर, a कितना बचा a रेज टू पावर 2 और b कितना बचा b रेज टू पावर 4। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है ये नीचे नहीं रहता है, इसको हम ऊपर यहाँ लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। अभी तक हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल से कर रहे थे, अब हमारे पास पॉलिनोमियल है एंड डिवाइड करना हमें मोनोमियल से। सो लेट्स सी हाउ विल डू इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x square minus 6x divided by 3x. Let's see it. फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। ओके, तो सबसे पहले हम अलग अलग इसको रख लेते हैं, एक बार इसके साथ 3x लिख लेते हैं एंड 1 इसके साथ एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3 से 5 तो कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, बट यहाँ x जो जो जितना कैंसिल हो सकता है, इसको यहाँ सिंगल x और यहाँ डबल, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ एक x है, यहाँ भी एक x खत्म, 3 1 जा एंड 3 2 जा। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं, यहाँ इधर से मैं लिखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ है 5/3 और एक x बच रहा है, माइनस यहाँ पर 2 है, 2/1 हालांकि लिखा हो, बट 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये रहा। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन है सेकेंड वन, 3y इसकी पावर है 8 माइनस 4y इसकी पावर है 6 एंड देन 5y की पावर दिया हुआ है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू 4। ठीक है, तो अगेन हम अलग अलग लिख लेते हैं इनको सेपरेटली। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ हम देखिए अगेन देखते हैं, यहाँ y कितनी है 4 है और यहाँ कितने हैं 8 है, तो यहाँ 4 कैंसिल हो गया, y की पावर 4 बची। ठीक है, यहाँ पर y 4 है और यहाँ 6 है, तो ये कितने बचेंगे 2। ठीक है, यहाँ y 4 है और यहाँ भी y 4 है, नंबर तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ मिल रहा है, हमें मिलेगा क्या, 3y रेज टू पावर 4 माइनस। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास है 4y स्क्वायर और लास्ट में केवल हमारे पास बच रहा 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बाकी आपसे बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, थर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 को आपको पहले ही बाहर से कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, तो ये आपको पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इस चीज़ को आप क्या करेंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पहले आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 से आपका पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करिएगा ठीक उसी तरह से करना जैसे हमने किया था बाकी क्वेश्चंस को। ठीक, इसके बाद है फोर्थ वन, ये भी आसान है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका लास्ट में फिफ्थ, ये भी आपको बन जाएगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं एक बार, शायद आपको डाउट हो इसमें। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है 8 ब्रैकेट के अंदर है x³ y² z² फिर प्लस है x² y³ z² फिर प्लस है x² y² और z²। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4x² y² और z²। ठीक है,
चलिए हम इसमें एक इजी अप्रोच लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे हमें करना है, देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ सभी में हम देखते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3 है, ठीक है। वाई कितना है, यहाँ पर वाई की पावर 2 है, जेड की पावर 2 है। यहाँ भी देखिए एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 3 है, जेड की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ भी 2 2 2, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये सभी में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, सभी से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या ले लेते हैं, 8 बाहर है ही, एक्स स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर ले लिया एंड जेड स्क्वायर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, इस वाली टर्म में देखते हैं, एक्स स्क्वायर गया मतलब एक एक्स बचा हमारे पास, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकला, ये ख़त्म, ठीक है, क्योंकि दो ही वाई स्क्वायर बचता, वो जेड स्क्वायर था, ठीक है। ये कैंसिल नहीं करना आपको इस तरह से, ओके। सेकेंड में हम देख रहे हैं, सेकेंड है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, एक्स भी 2 टाइम है, वाई 3 टाइम है, तो केवल यहाँ वाई बचेगा और जेड स्क्वायर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तीनों चीज़ स्क्वायर में है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्यूब है, ये जेड की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ केवल जेड बचेगा, राइट। और यहाँ हम लिखेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो ये देखिए ये तीनों चीज़ें कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये तीनों में कट गया, ठीक है। ये 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो हमारे पास कुल मिल रहा 2 और ब्रैकेट के अंदर एक्स, वाई एंड जेड, ये हमारा आंसर, ठीक है। और यदि आपको ये इस तरह से कॉमन लेना नहीं बनता, हालांकि हमने पढ़ चुके हम लोग ये इसके पहले एक्सरसाइज में, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालना। यदि वो नहीं बनता तो फिर आप इसको सिंपली आप एक बार क्या करिए, 8 लिख दीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, 8 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर आपको हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर कितना, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तीनों के साथ आप लिख दीजिए। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा आपका, 4 2 जा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 3 है, ठीक है। बाकी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये दोनों पूरा कट जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 2x, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर कट जाएगा, वाई यहाँ 2 है नीचे और यहाँ 3 है, तो एक वाई बचेगा, और 4 2 जा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 वाई बचेगा। इसी तरह जब आप इसको करेंगे तो 2 जेड बचेगा, ठीक है। जब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स, वाई और जेड बचेगा, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीज़न, यहाँ भी अगेन हमें डिवीज़न ही करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, सेम है, थोड़ा सा बस चेंज है इसमें, स्लाइड चेंज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ 10x माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, बहुत सिंपल है। एक बार 10x के साथ आप इसको लिख दीजिए, एक बार 5 के साथ लिखिए, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे 5 2 ज़ा, ठीक है, तो आपको मिला 2x और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस का 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का वो ये है कि 10x माइनस, एक सेकेंड, 25 था, सॉरी, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें आई थिंक हमने 5 लिखा था, तो इसको हम चेंज करते हैं कि 25 है। एक बार फिर इसे देख लीजिए, ठीक है। ये तो एक तो मैंने अलग अलग करके बताया कि आपको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ आपने काट दिया इसको 5 2 ज़ा, और यहाँ से काट दिया 5 5 ज़ा, तो 2x माइनस 5 मिल गया, एक ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ इन दोनों में कौन सा नंबर है जो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 5 दोनों में से आ सकता है, ठीक है, तो
5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, ये हमने 5 कॉमन निकाल लिया और नीचे 5, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें आंसर कितना मिला? 5। जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे वो तरीका आप ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर है इसी का, वो है 10x माइनस 25 और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 5। अब यहाँ आप अलग अलग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना ही पड़ेगा। ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आप देखिए, दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन निकल सकती है इन दोनों में। ठीक है, तो 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो हम यदि 5 ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x, 5 2 ज़ा 10x। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 ये, और यहाँ 2x माइनस 5, ये दोनों एक जैसे हो गए, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर है आपका 10y, फिर है आपका 6y प्लस 21, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 इंटू 2y प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 2 ज़ा यहाँ पर ही कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 2, अब हम एक काम कर सकते हैं, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक टर्म ये लिखा हुआ जो यहाँ, ठीक है, इससे देखिए हम यदि 3 कॉमन ले लें, 3 बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 2 ज़ा 2y बचेगा। ठीक है, फिर 3 7 जा, तो यहाँ 7 बचेगा, राइट। और नीचे हमारा 2y प्लस 7 लिखा हुआ है, 5 तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और आंसर 2 इंटू 3 ये कितना आएगा, 6 मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है आपका, फोर्थ नंबर बन जाएगा आपको। ठीक है, फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्या है आपका, 96 ABC। ठीक है, फिर 3A माइनस का 12 और 5B माइनस का 30। इसको हमको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है इसको 1 4 4 A माइनस 4 एंड B माइनस 6, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि आपको 16 का टेबल आता है तो बेटर है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। 16 9 जा, ठीक है, एंड 16 6 जा। ठीक है, 16 9 जा 144 और 16 6 जा, फिर अगेन हम 3 से इसको कर देंगे, 3 2 जा एंड 3 3 जा। ठीक है, ऊपर हमें कितना मिला 2, नीचे 3। ठीक, अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है ABC। ठीक है, 2 इंटू ABC, राइट, इंटू में है, आप इंटू इस तरह लिख भी सकते हैं यदि चाहें तो, या नहीं लिखना है कोई बात नहीं, डॉट लगा दीजिए। इसके बाद इधर देखिए आप 3A माइनस 12, यदि हम इससे 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो A माइनस 4 बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके इसका देखिए 3A माइनस 12 आएगा। ठीक, इससे कॉमन हमने लिया। अगेन यदि हम इससे 5 कॉमन ले लें इस वाली टर्म से, तो ब्रैकेट में बचेगा अंदर B और माइनस का 6, 5B माइनस 30। नीचे हमारा लिखा है, नीचे पहले ये 3 बचा, इसको हमने लिखा 3। ठीक है, ब्रैकेट में A माइनस 4 और यहाँ क्या लिखा B माइनस 6। ठीक है, तो अब देखिए A माइनस 4 ये कैंसिल हुआ, B माइनस 6 ये कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, हमारे पास जो बचा हुआ है वो ये है 2ABC इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना है 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15 इंटू 2। ठीक है, और उसमें भी एक चीज़ है, ये जो 3 है ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास है 5 इंटू 2 मतलब 10 और ABC। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ 10ABC। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको आप चाहें तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ, इसको हटा के कितना हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 10ABC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एज डायरेक्टेड। ठीक है, जैसा डायरेक्ट किया गया, जैसा बताया गया उस तरह से आपको डिवाइड करना है, राइट।
तो अगेन यहाँ ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट। तो क्वेश्चन है 5 इंटू 2x+1 3x+5 और डिवाइडेड बाय 2x+1। ठीक है, तो यहाँ ये और ये आपको ख़त्म, तो आया 5 इंटू 3x+5। ठीक है, ये आंसर, ये आप चेक कर लीजिएगा यदि मल्टीप्लाई किया गया हो तो इसका इससे एक बार मल्टीप्लाई करिए और एक बार इसका कर दें। ठीक है, तो ये आपको 5 3 जा 15x। ठीक है, और 5 5 जा 25। या तो ये होगा या तो ये आंसर। ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बन जाएगा सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है 20y + 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 3 और डिवाइडेड बाय 5 इंटू y + 4। ठीक है, सबसे पहले 5 4 जा, जस्ट ए मिनट, सबसे पहले 5 4 जा यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये y + 4 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है 4 और वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरा। ओके, बाकी आप नंबर फिफ्थ जो इसका क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। अब हमें क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है फिर हमें डिवाइड करना है, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस का 7y और प्लस का 10 डिवाइडेड बाय y + 5। तो देखिए हमने इसके पहले क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि हम इसको कैसे करते हैं। ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, 7y, इसको हमें इस तरह से लेना है, दो नंबर में हमें इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब 10y² है। ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो 7y आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, 5 और 2। ठीक है, तो इस 7y को हम क्या लिखेंगे, y² प्लस 2y और प्लस का 5y और प्लस का 10 डिवाइडेड बाय नीचे y + 5। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखता हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दो दो के यहाँ पर हम सेट में देखते हैं इसे, इन दोनों का सेट बनाइए कि इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, y हमने कॉमन लिया तो एक y यहाँ बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ y की पावर 2 थी, एक y लिया तो एक y बचा और 2। सिमिलरली इस पेयर में आप देखिए, यदि हम 5 ले लेते हैं तो यहाँ y बचेगा अंदर एंड 2, और नीचे हमारा लिखा हुआ है y + 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मैं ये थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ इस जगह को। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके इनफ। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखते हैं हम कि ये जो y + 2 है, ठीक है, ये जो है आपका, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ठीक है, इसको हम एक बार लिख लेंगे, ये कॉमन आ जाता है y + 2, और जो बचा ये y और ये 5, इसको हम लिख लेंगे y + 5। ठीक है, और ये नीचे क्या लिखा डिनोमिनेटर में, y + 5।
ठीक है, ये कट जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली जो बचेगा वो क्या बच रहा है, y+2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको आप रफ कॉपी में एक बार लगाइएगा तो बेटर क्लियर होगा। स्क्रीन में इतना स्पेस नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को एक बार में कर सकें, इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। ठीक है, बट इसे ट्राई करिए, यदि नहीं समझ में आता तो आप इसको बाद में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारा इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका मैं आपको फैक्टराइज ये बीच का बता देता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करना क्या होगा। ठीक है, इसको आप m² माइनस का क्या हो जाएगा, 16m प्लस का 2m और माइनस का 32 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो एडिशन करें सब्ट्रैक्शन तो 14 मिलना चाहिए, -14 तो वो मिल रहा हो, मल्टीप्लाई करने में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दो को एक साथ ले लेंगे, इन दो को एक साथ, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है। तो पहले यहाँ क्या निकल रहा है, m, तो अंदर इसमें बचेगा m-16, राइट। फिर यहाँ यदि हम 2 ले लेंगे तो m-16 बचा। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, m-16 कॉमन है, तो m-16 को हमने एक बार लिख लिया और ये जो है m+2 जो बचा। ठीक है, ये हमारा इसकी वैल्यू हो गई, किसकी, इसकी वैल्यू केवल। ठीक है, लेकिन इसके साथ नीचे डिवाइड में क्या लिखा है, m+2, तो ये भी हम इसके साथ लिखते चलेंगे शुरू से m+2। ठीक है, इसमें भी अपन लिखते चलेंगे m+2। ठीक है, और इस पर भी अपन लिखेंगे m+2। ठीक, अब ये m+2 कैंसिल, तो हमारा आंसर केवल m-16 बचेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप करिएगा, इसमें फैक्टराइजेशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक, फोर्थ भी इजी है, नंबर 5th एंड नंबर 6। चलिए नंबर 6, सॉरी 5th 6 7, नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप लगाइएगा और यदि नहीं बने तो फिर आप मुझे बताइए। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नंबर 7 जो क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन, इसको यहीं पर स्पेस बनाते हैं 1 मिनट। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको वाइट बोर्ड बना दिया जाए। ठीक है, इसमें ताकि चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो सके, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली टर्म को हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म जो है हमारी, इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दीजिए, भूल जाइए यहाँ से। ठीक है, डिवाइड में हमने लिख लिया, क्या है यहाँ पर 26y² और यहाँ पर 5y+7, थोड़ा सा पेन ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, 26y² और है 5y+7। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 2 जा और यहाँ पर 13 3 जा। ठीक है, और यहाँ y2 है और यहाँ y3 है, तो एक सिंगल y बचेगा। तो ऊपर हमें मिल रहा है 3y
ठीक है। और 50y² माइनस का 98, और यहाँ नीचे हमें क्या मिला, 2 बचा था, और 5y प्लस का 7, इतनी चीज़ें बची, राइट। अब देखिए ये जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी हुई, ठीक है, इसमें हम देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 50y लिखा हुआ है एंड 98 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम 10 ले लें तो 5y, 10y ले लेते हैं, 2 लेके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3y इंटू, हमने 2 बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 25y² माइनस 49 बचेगा, 2 लेंगे तो, ठीक है। और नीचे बचेगा आपका 2 इंटू 5y प्लस 7, राइट। इसके बाद ये 2 से 2 हम इसको यहीं कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3y लिखा हुआ है, इस 25y² को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 5y का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, राइट। और नीचे जो हमारा लिखा हुआ है एज इट इज़ रखेंगे हम 5y प्लस 7, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो आपका है ये पोर्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये a² माइनस b², इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या लिखा हुआ था हमारे पास, 3y लिखा था आई थिंक, और यहाँ पर एक बार ये 5y प्लस का 7 आएगा और 5y माइनस का 7 आएगा, ठीक है। और नीचे भी लिखा हुआ था 5y प्लस 7, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास 3y, और यहाँ पास कितना बचा 5y माइनस 7, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 3y ब्रैकेट में 5y माइनस 7, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और इस क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट की। अब जो छूटे हुए क्वेश्चन ये आपको लगाना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज 14.3 है ये आपको नहीं, सॉरी 14.4 जो है, राइट, 14.4 जो है वो आपको नहीं करना है, ओके, फेयर कॉपी में नहीं करना है, और एग्ज़ाम में भी आपके नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ओके। सो सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।